everyone, welcome to MH7 Neat Vibes. Today we will start with our lesson Breathing and Exchange of Gases. Let's do its NCERT reading. As you have read earlier, oxygen O2 is utilized by organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities. Carbon dioxide CO2, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनटेक करते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए और एनर्जी डिराइव करने के लिए जो हमें वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए लगती है, और जो हमारा CO2 होता है वो रिलीज आउट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. ये कहीं पर भी स्टोर्ड नहीं होना चाहिए. O2 कंटिन्यूस इनटेक होना चाहिए और CO2 का कंटिन्यूस आउटटेक होना चाहिए. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. The process जिसमें O2 एटमॉस्फेयर से इनटेक हो रहा है और CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स का आउटटेक हो रहा है उसे कहते हैं ब्रीदिंग, और सबको कॉमनली मिला के कहा जाता है रेस्पायरेशन. Place your hands on your chest. You can feel the chest move up and down. You know that it is due to breathing. What do we breathe? We breathe atmospheric air. And what do we breathe out? We breathe out atmospheric air only. So don't be confused. The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. Respiratory organs. The mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats, level of organization. जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है. जैसे कि हम फिशेस को ले लेते हैं तो फिशेस कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, और वो कौन सा ऑर्गन यूज़ करती है ब्रीदिंग के लिए, अपना स्किन, अपने गिल्स को यूज़ करती है. बट जबकि बात करें ह्यूमन बींग्स की तो ह्यूमन बींग्स लैंड पे रहते हैं और वो अपना नोज़ को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए. तो दिस सेज कि जैसे जैसे हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बदलता है वैसे वैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी बदलता है. Lower invertebrates like sponges, coelenterate, flatworm, etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworms use their moist cuticle, and insects have network of tubules called tracheal tubule to transport atmospheric air within the body. जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलियंट्रेट और फ्लैटवॉर्म होते हैं वो अपना एंटायर बॉडी सरफेस यूज़ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जबकि हमारा जो अर्थवॉर्म होता है वो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल्स, और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉकरोच, वो ट्रैकियल ट्रिब्यूल्स यूज़ करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर का एक्सचेंज करने के लिए. Special vascularized structures called gills are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs are used by terrestrial forms for exchange of gases. जो गिल्स होते हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स यूज़ करते हैं और मोलस्क यूज़ करते हैं उसको, और जो वेस्कुलराइज बैग होते हैं वो लंग्स कहा जाता है, उसे यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे कि हमारे पास भी लंग्स होते हैं. Among vertebrates, fishes use gills, whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin also. फ्रॉग्स जो होती है वो इनसाइड द वाटर स्किन इनसाइड द वाटर अपने गिल्स यूज़ करती है, और जब वो लैंड पे होती है तब वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करती है.
Mammals have well-developed respiratory system. Human respiratory system. We have pair of external nostrils opening above the upper lips. It leads to the nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into pharynx, a portion which is common passage for food and air. The larynx opens through larynx into a region called trachea. Larynx is cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thick elastic flap called epiglottis. To prevent the entry of food into larynx, trachea is a straight tube ending up to the middle thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi. Each bronchi goes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchi. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchi gives rise to a number of very thin, irregularly walled vascularized bag called alveoli. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise lungs. So, I will give you explanation of this paragraph in a form of a flow chart. Here I have the flow chart of that paragraph. So first air enters into the nostril, then from nostril it goes to the nasal chamber, then from nasal chamber it moves to pharynx. From pharynx it goes to larynx. Larynx is also called as sound box. Here production of sound takes place. Then from larynx it goes to trachea, and then at fifth thoracic vertebrate level trachea gets divided into primary bronchi, right and left bronchi, which enters into the lungs. Then primary bronchi further divides into tertiary, secondary and tertiary bronchi, and this secondary and tertiary bronchi further divide into initial and terminal bronchioles. Till from trachea to initial bronchiole we have incomplete cartilaginous ring which support the that tube-like structure. Then terminal bronchiole finally enters into a sac-like structure which is called as alveoli. It looks something like this. Our alveoli looks. So as we have understand the air passage from nostril to alveoli, let's see further. The branching network of bronchi, bronchiole and alveoli comprise the lungs. जो ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई है ये सब मिलके बनते हैं लंग्स, और जो हमारे अल्वेलाई होते हैं ना ये लंग्स के बेसिक यूनिट होते हैं. We have two lungs which are covered with double layer pleura with pleural fluid between them. It reduces friction to the lung surface. जो pleural fluid होता है ना, ये देखिए जैसे कि ये लंग्स है, ये प्लूरल कैविटी है, तो यहाँ पर में ना प्लूरल फ्लूइड फिल्डअप होता है जो प्रिवेंट करता है ये दोनों लेयर की स्लाइडिंग को, जिसकी वजह से जो हमारा लंग्स होता है ना वो अच्छे से मतलब एकदम कांटेक्ट रहता है और कोलैप्स नहीं होता. वरना अगर ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड करेंगे तो इसकी वजह से लंग्स को, ये वाला जो सरफेस होगा, इनर सरफेस होगा लंग्स को, उसको डैमेज हो सकता है. इसके लिए वहाँ पर में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. The outer pleural membrane is in a close contact with the thoracic
lining, whereas inner pleural membrane is in contact with lung surface. Outer membrane thoracic lining के कांटेक्ट में होता है और इनर मेम्ब्रेन लंग के सरफेस के कांटेक्ट में होता है. The part starting with external nostril ends up to terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas alveoli and their ducts from the respiratory and exchange part of the respiratory system. Nostrils से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के ये होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट. मतलब इसके अंदर में जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो अंदर आती है, बॉडी के अंदर आती है. बट अल्वेलाई और जो इसके रेस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, ये एक्चुअल एक्सचेंज पार्ट होता है. इसमें से जो ऑक्सीजन होता है, नेसेसरी गैसेस होती है, वो ब्लड के अंदर जाती हैं और ब्लड से CO2 बाहर आता है. दिस इज़ द मेजर ट्रांसपोर्टिंग पार्ट, व्हाट alveoli and its ducts. The conducting part transports the atmospheric air to alveoli, clears it from foreign particle, humidify it and bring it to the body temperature. Conducting part से नॉस्ट्रिल से अल्वेलाई तक के आई तक के जो एयर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है, उसको ह्यूमिडिफाई करा जाता है और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसे थ्रो बैक किया जाता है, जो कि हमारी जो ऑर्गन्स है उन्हें सिर्फ प्योर ऑक्सीजन मिले. द एक्सचेंज पार्ट इज the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated at thoracic chamber with anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum. आपको पता है ये रिब केज कैसा होता है. डॉर्सली वो वर्टिब्रल कॉलम को स्टिक होता है और वेंट्रली स्टर्नम को स्टिक होता है. रुकिए मैं आपको एक रिब केज का इमेज भी दिखाती हूँ. ये देखिए जो हमारा रिब केज है वो आगे में, ये स्टर्नम हमारी जो कॉलर टाइप बोन होती है, स्टर्नम को अरेंज स्टर्नम से स्टिक होते हैं और पीछे में ये वर्टिब्रल कॉलम को स्टिक होते हैं. आगे से वेंट्रली स्टर्नम और पीछे से डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम. प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना. आगे से स्टर्नम और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम. और जो ये केज होता है इसके अंदर में हमारे लंग्स होते हैं, फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरल बाय रिब्स on the lower side by dome shaped diaphragm. जहाँ पर में हमारा रिब केज ख़त्म होता है उसके एग्जैक्टली नीचे एक ऐसा बेल्ट होता है, इसे कहते हैं डायफ्राग्राम. यहाँ पर में हमारा रिब केज, ये स्टर्नम, ये रिब्स और ये यहाँ पर में होता है डायफ्राग्राम. The anatomical setup of lung in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will reflect in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. Respiration involves following step. Breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Diffusion of gases O2, CO2 across alveolar membrane. Transport of gases by blood. Diffusion of O2 and CO2 between blood tissues. Utilization of O2 by the cells of catabolic reaction and resultant release of CO2, cellular respiration as dealt in 14th chapter. सबसे पहले intake of atmospheric air means breathing or pulmonary ventilation of atmospheric air and release out of CO2. Diffusion of
O2 and CO2 across alveolar membrane. उसके बाद में transport of gases to blood, diffusion of CO2 between blood and tissues, then utilization of O2 for catabolic reaction and resultant release of CO2. सबसे पहले एयर इन आती है, फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया पूरा पैसेज नॉस्ट्रिल से लेकर ऑल्विलाई तक के, फिर अल्विलार मेम्ब्रेन में एक्सचेंज डिफ्यूजन होता है गैसेस का, मतलब जो हमारे O2 होता है वो कार्पिलरीज के थ्रू टिश्यूज़ में जाता है, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड के अंदर जो नेसेसरी गैसेस होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 इन ब्लड एंड टिश्यू, फिर जो हमारी सेल्स होती है टिश्यू जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं उसकी सेल्स होती है वो O2 को एब्जॉर्ब करती है, O2 को लेती है, O2 का यूज़ करती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और फिर उसके बाद में रिजल्टेंट जो CO2 होता है वो सेम पाथवे के थ्रू बस रिवर्स फॉर्म में बाहर आ जाता है. Mechanism of breathing. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is taken in, and expiration, when alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmospheric air. Inspiration can occur only if the pressure within the lungs, interpulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is negative pressure in the lung with respect टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब लंग्स का प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो जब एयर अंदर आएगी. सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तब एक्सपायरेशन टेक प्लेस करेगा. एकदम सिंपल रखेंगे इसको. इंस्पायरेशन जब लंग्स का प्रेशर कम होगा तब होगा, और एक्सपायरेशन जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होगा. द डायफ्राग्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल्स, external and internal intercostal muscles between the lips, help in generation of such gradient. Inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, and contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum, causing increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in thoracic volume causes similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases pulmonary interpulmonary pressure to less than atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. That is inspiration. Relaxation of diaphragm and intercostal muscle returns the diaphragm and sternum into normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary pressure. This leads to increase in interpulmonary pressure to slightly above atmospheric pressure, causing explosion of air from the lungs, that is expiration. अब ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई है, तो मैं आपको इसको एक सिंपली ये जो पूरा पैराग्राफ है इसकी मैं आपको एक जिस्ट देती हूँ. सो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को एकदम सिंपल फॉर्म में समझते हैं. जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में. जैसे कि ये हमारा रिब केज है, ये हमारा स्टर्नम है, ये रिब्स हैं. ये वाला जो एक्सिस है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इसके अंदर में जो हमारा वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ होता है. और जब
फिर उसके बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसकी वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस को हम किसको बोलेंगे। फिर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो अंदर आ जाता है। और अगर अब हमें एक्सपायरेशन पढ़ना होगा तो एक्सपायरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को उल्टा कर दीजिए। जहाँ पर में इंक्रीज़ है वहाँ पर में डिक्रीज़ होगा, जहाँ पर में कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पर में रिलैक्सेशन होगा। जैसे कि एक्सपायरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राग्राम, वॉल्यूम डिक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वॉल्यूम डिक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, increase in pulmonary pressure and atmospheric air goes out. So simple. इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे की एनसीईआरटी रीड करते हैं। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. On an average, healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. जो हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कैपेसिटी होती है वो हम खुद की विल से बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। जैसे किसी को, जैसे हम योगा करते टाइम एकदम फोर्सफुल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, तो ये हमारी विल से हो रहा है। और जो एवरेज ह्यूमन होता है, एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का, वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और ये जो ब्रीदिंग टाइम होता है, जो एस्टिमेटेड ब्रीदिंग मोमेंट्स होते हैं, वो हम स्पायरोमीटर की मदद से क्लिनिकली व्हाट वी से देख सकते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के जो आपको याद होने चाहिए, इसकी मार्किंग्स भी याद होनी चाहिए और एरोस के हेल्प से आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि क्या करेंगे कि ये ऐसे आपको इरेज करके इसके आजू बाजू कोई लेबलिंग नहीं देंगे, ओके। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये काय का डायग्राम है, इंस्पिरेशन का है, ब्रीदिंग का है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर में। जो हमारा ये है, हमारे रिप्स कहाँ आ रहे हैं, बाहर की तरफ। एयर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। डायफ्राग्राम का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये इंस्पिरेशन का है, इंस्पायरेशन का डायग्राम है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एक्सपायरेशन का, रिप्स कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ, मतलब हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एयर कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। डायफ्राग्राम का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन, मतलब ये एक्सपायरेशन का है। ऐसे कुछ सिंपल डायग्राम्स होते हैं जिसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि एनटीए इसके अंदर में आपको फंसा सकता है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के ऊपर में। तो ये सब जो चीज़ें, ये सिर्फ आपको लर्न करनी है, रट्टाफाई इट, लर्न कर लो बस इसे। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 500 ml. That is, healthy man can inspire or expire 6,000 to 8,000 ml of air per minute. टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml, और पर मिनट 6,000 to 8,000. Inspiratory reserve volume, additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration, average 2,500 to 3,000 ml. Expiratory reserve volume, additional volume of air a person can expire forcible expiration, average 1,000 to 1,100 ml.
टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो एक पर्सन नॉर्मली, आप सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल स्टेट में, तो वो है टाइडल वॉल्यूम। लेकिन आपने सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया और उसके बाद में एकदम फोर्सफुली, एकदम ताकत के साथ में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इंस्पायर करोगे, उसे बोलेंगे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर नॉर्मली सांस छोड़े ना, सांस लिए और फिर उसके बाद में एकदम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे हम, उसे कहते हैं, मतलब अपनी एक लिमिट से ज़्यादा, जो नॉर्मल लिमिट होती है उससे ज़्यादा अगर एक्सपायर करेंगे उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होती है 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम of air remaining in the lung even after forcible expiration. This average 11,000 ml to 1100 ml to 1200 ml. By adding a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. जो हमारी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम्स है, इनको ऐड करके हम कुछ क्लिनिकल यूज़ के लिए जो हमारी पल्मोनरी कैपेसिटीज़ होती है उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट total volume of air a person can inspire after normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. बात काहे की हो रही है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। तो क्या होगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस नॉर्मल ब्रीदिंग, हमारी टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Total volume of air a person can expire after normal inspiration. This includes tidal volume and expiratory reserve volume. TV plus ERV. Functional residual capacity. A volume of air that will remain in the lungs after normal expiration includes expiratory reserve volume एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया बट उसके बाद में भी जो एक वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर में रहेंगी जो कभी भी नहीं निकल सकती है, उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV, TV and IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after forced inspiration. Total lung capacity, ये पूरे लंग की कैपेसिटी, मतलब जितनी एयर आप ले सकते हो, आप ब्रीद इन कर सकते हो, ब्रीद आउट कर सकते हो, टोटल लंग कैपेसिटी उसे कहेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स at the end of forceful inspiration. This includes residual volume, ERV, TV, IRV और vital capacity plus residual volume. ये सब जो है ना, ये आपको फार्मूलाज की तरह, फिजिक्स के फार्मूलाज की तरह लिख के लर्न करने पड़ेंगे। इसका एक चार्ट बनाइए और अपने स्टडी टेबल के पास में लगा दीजिए। हर रोज़ 1 या 2 बार पढ़ लेंगे, 2 दिन में 1 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ईजीली लर्न हो जाएगी, नो इशू। Exchange of gases. Alveoli are primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissue. O2 and CO2 are exchanged in this site by simple diffusion, mainly based on pressure concentration gradient. Solubility of gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion are some important factors that can affect the rate of diffusion. Rate of diffusion को कौन से factors affect करते हैं? Pressure and concentration gradient, solubility of the gases, thickness of the membranes जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होंगी उनकी थिकनेस, ये सब फैक्टर्स होते हैं वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये आपको ये लर्न करने होंगे। क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली कहीं से भी आ सकता है। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide.
partial pressures of these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion are given in the table and in figure. The data in the table clearly indicates the concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. तो पार्शियल प्रेशर मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है mmHg, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए. तो अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखते हैं. एटमॉस्फेरिक लेवल पे होता है 159, अल्वेलाई में जाने के बाद में होता है 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40. ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वहाँ पर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा. जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है उसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा होगा. 95 mmHg. और टिश्यू में ऑब्वियस सी बात है, ये आपको समझना होगा कि टिश्यू में क्यों कम है, बिकॉज टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा और जब ऑक्सीजन वहाँ जाएगा तो वो उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा, इसलिए टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कम होता है. CO2 एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, अल्वेलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यू में 45. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि टिश्यू में कम क्यों है ऑक्सीजन का प्रेशर और CO2 का प्रेशर ज़्यादा क्यों है. ये चैप्टर ना बहुत लॉजिकल है, आपको बहुत लॉजिक से इस चैप्टर को समझना होगा. बहुत बार मल्टीपल टाइम्स NCERT रीड करनी होगी, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा. A gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli. As solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is in partial pressure is much higher compared to that of O2. The diffusion membrane is made up of three major layers, namely thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries and the basement substance between them. जो alveoli की लेयर होती हैं वो थिन स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती हैं और अल्वेलार कैपिलरीज की जो लेयर होती है वो बनी होती है ये वाली लेयर, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाली लेयर बनी होती है एंडोथेलियम की. और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो येलो कलर का ये जो इंडिकेट हो रहा है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है अल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये भी एंडोथेलियम का बना हुआ होता है. However, its total thickness is much less than millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli.